Good morning, friends. How are you? I think all of you will. Student, in previous lecture you studied about work and energy. Also, you can understand about power. What is the unit of power? What is electric unit? And I think all of you understand all this concept. Okay? And also you can complete whole exercise. If not completed, you can as a homework you can complete whole exercise of that lesson. First, all of you, a very happy Dashera to you and your family. I wish all of you are well, stay home and safe. Now, today we start our new lesson, that is current electricity. So, let's see what is this lesson. Electricity is at most important in our modern world. You know that we depend on it for always, every time in our day to day life. In order to avoid the inconvenience caused due to a failure of power supply, hospital, bank, office and private institute make a alternative arrangement with the help of generators. Student, you know that big hospitals, bank, offices, if any reason power supply due to MSCB or due to main source of electricity, they arrange the generators. Electricity is used for running electric furnace, electric motor, and several other instruments used in industries. In our houses also electricity is very useful. Our fridge, machine, electric motor, fridge, so many electric instruments which are work on it. Domestic appliances like fridge, electric oven, mixer, fan, washing machine, vacuum cleaner, roti maker, and so on have helped us by saving time and labor. All these devices cannot be run without electricity. It means all these appliances are run with the help of electricity. Not only human being but some animal use electricity. For example, fish such as else electricity to catch fire, prey, and also for self-defense. The lightning that strike the earth in an excellent example of natural flow of electricity. What if we could collect and store this electricity? In this lesson, student, you learn about electricity. What is electricity? Some natural sources of examples are there, like electric fish. You heard, or maybe in Discovery or any, if you search about it, you will get a lot of information about it. Okay. Now let's see what is this electricity. For that purpose, here is one question for you. You must have seen waterfall. Which way does water flows? Okay. आपने कभी ऊंचाई से नीचे पानी गिरते हुए देखा होगा, तो उन्होंने उसी के बारे में पूछा है. देखा है ना कोई वाटरफॉल? Okay, so you have to try to answer this question. For the generation of electricity, water is released from a dam at higher level, and because of gravity, it falls to a lower level. Thus, as we know, the direction of flow of water between 2 points depends on the level of 2 points. क्या है यहाँ पर, क्या दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है, जैसे कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है. तो उनका कहना ये है कि वाटर को एक सर्टन हाइट पे स्टोर करते हैं, जैसे डैम में, और वहाँ से उसको रिलीज़ करते हैं. तो ग्रेविटी की वजह से वो जो वाटर है वहाँ से वो नीचे बहने लगता है, नीचे आने लगता है. ओके, सो दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ 2 पॉइंट्स. जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब वो ऊपर से नीचे आता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ओके, next see the potential and potential difference. What is this potential and potential difference? See properly here. Here is one picture, student. 3.1 level of water and direction of flow. Some equipments are required to perform this experiment. What is this equipment? Take 2 plastic bottle, rubber tube, clamp, water. Okay, and the procedure. What is procedure? Set up experiment as shown in figure. Then remove the clamp from the rubber tube. Note your observation and answer the following question. आपको जैसे इस प्रोसीजर में दिया है ना, वैसे करना है.
ओके। और क्लैंप मतलब वो जो चिमटा होता है ना, जैसे हम कपड़े के लिए यूज़ करते हैं देखो, तो वहाँ पे वो क्लिप वहाँ पे फिट करनी है। और जैसे ही वो ऐसे सेटअप हो जाए, उस बाद में उस वो रबर ट्यूब है वहाँ से उस क्लिप को हटा देना है। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बेस्ड है, जैसे व्हाट हैपन व्हेन द क्लैंप इज़ रिमूव्ड। अब जैसे आपने वो क्लिप हटा दी तो क्या होगा, देखो दो बॉटल्स है, एक थोड़ी हाइट पे है, एक नीचे है। तो क्या होगा, तो ऊपर से पानी नीचे की बॉटल की तरफ बहने लगेगा। अब ये बहाव कब तक अच्छा रहेगा, जब तक कि दोनों बॉटल की वाटर लेवल इक्वल नहीं हो जाती। डज द वाटर स्टॉप फ्लोइंग, वन। अब ये वाटर फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की बॉटल में जो भी पानी है वो नीचे की बॉटल में आना स्टार्ट होगा। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों की वाटर लेवल इक्वल नहीं हो जाती। वट विल यू डू टू कीप द वाटर फ्लोइंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब ये फ्लो बहुत ज़्यादा देर तक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे की बॉटल कम्प्लीटली एम्प्टी होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ऊपर की थोड़ी ऊपर होनी चाहिए और वो फुल होनी चाहिए। तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक वो वाटर फ्लो होता रहेगा। ओके। जस्ट लाइक वाटर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट, दिस लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो ऊपर की बॉटल में पानी है और नीचे की बॉटल में नहीं है। तो जब ऊपर की बोतल में पानी है और नीचे की बोतल में नहीं है, तभी तो वो ऊपर से नीचे की बोतल में पानी बहेगा। ओके। अब वो क्लिप हटाने के बाद अगर नीचे की बोतल भी भरे वाली होगी तो क्या पानी बहेगा, नहीं बहेगा। तो यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक जगह पे होना चाहिए कोई पोटेंशियल या वाटर या कोई भी मैटर, और दूसरी जगह पे कम होना चाहिए। तो ये जो एक जगह पे है और दूसरी जगह पे नहीं है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो जितना बड़ा आएगा उतनी अच्छी तरीके से वो फ्लो होगा। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। What is electricity? It is nothing but flow of electron. Okay. So when this water is flowing from high bottles or the higher bottles to lower bottle, which is keep downward, that is the potential difference. यही आपको समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट है। जस्ट लाइक वाटर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल। जैसे यहाँ पर वाटर का लेवल है, ऊपर की बॉटल में ज़्यादा वाटर लेवल था इसीलिए वो नीचे की तरफ बह रहा था। तो उसी तरह से एक कंटेनर में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए और दूसरे इसमें कम, तभी तो वो इलेक्ट्रिक फ्लो स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड what I want to say? Okay, see the next point now. A positive charge flow from a point higher potential to a point of lower potential. What is it? A positive charge. Which charge? A positive charge flow from a point of higher potential to a point of lower potential. जैसे भरी वाली बॉटल थी वहाँ से वो ऊपर की बॉटल से पानी जो एम्प्टी नीचे बॉटल थी उसमें आ रहा है, तो उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। कहाँ से? जहाँ पर हाइयर पोटेंशियल है वहाँ से वो जहाँ पर लो पोटेंशियल है उस तरफ। हमेशा ये फ्लो उसी डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में? फ्रॉम हाइयर टू लोअर। Understand? You should be keep this sentence in your mind. We have seen earlier that electric flow due to conduction of negatively charged electron. हमने पहले का पता है था आपको। Okay? The electricity flows due to conduction of negatively charged electron. Electron flow from point of lower potential to a point of higher potential. Electron are flow from point of lower potential to a point of higher potential. Understand? A lightning strike as a flow of electron from point of lower potential, that is negative potential, on the cloud to a point of higher potential, that is zero, on the earth. Okay? जहाँ पर लो पोटेंशियल है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं कहाँ से? तो वहाँ से फ्लो होते वो स्टार्ट होते हैं जहाँ पर लो पोटेंशियल है और अर्थ की। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है देखो लाइटनिंग का।
किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर? लाइटनिंग का। मतलब बिजली कड़कती है ना, आपने देखा होगा ना बारिश के दिनों में, देखो बिजली कड़कती है, उसके बाद आवाज़ आती है, उसके बाद वो पहले शाइनिंग होता है, फिर आवाज़ आती है, फिर ज़ोर से बारिश होती है। तो ये बिजली कड़कना, उसका मतलब क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू कंडक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ओके, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। क्लाउड के उधर लोअर पोटेंशियल है और हमारी जो अर्थ है, ओके, वो जीरो पोटेंशियल है, तो उसकी तरफ वो फ्लो होते हैं। अंडरस्टैंड? यू शुड बी कीप इन माइंड दिस थिंग। द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल to a point of higher potential. The lightning strike is a flow of electron from point of lower, that is negative potential on the cloud, to the point of higher zero potential on the earth. अर्थ का पोटेंशियल कितना है? ज़ीरो है, मतलब हाइयर है। अर्थ में ज़्यादा ये करने की कैपेसिटी है, ओके, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समाने की कैपेसिटी है। वी शैल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ हाइयर स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट ईयर है आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस की स्टडी। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, पोटेंशियल मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को समाने, अगर आपके पास दो बॉटल है, सपोज एक बड़ी वाली बॉटल है, एक छोटी वाली बॉटल है, तो पानी भरने की कैपेसिटी किस में ज़्यादा होगी? तो होगा, वो हो गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरीके से ये है, उसी एग्जाम्पल को आप याद रखो, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। हियर इज वन फिगर स्टूडेंट, 3.2, सी दिस फिगर। कंडक्टर ए इज एट अ हाइयर पोटेंशियल दैन कंडक्टर बी। अब ए के कंपेरिजन में बी में हाइयर कैपेसिटी है। व्हेन दीज टू आर कनेक्टेड by a conducting wire, the potential difference is created its two ends and electron will flow from B to A. Okay, electron will flow from B to A. देखो, A is having high potential as compared to B. A में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब समाने की क्षमता है एज कम्पेयर टू बी में। जब हम ए और बी को कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टिंग वायर मतलब कोई भी ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। जैसे कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, तो उसी वायर से हमने ए और बी दोनों को अगर हमने कंडक्ट कर लिया या फिर कनेक्ट कर लिया, तो क्या होगा? तो उनका कहना ये है कि व्हेन ए at higher potential than conductor B and when these two are connected by the conducting wire, a potential difference is created between two ends and electron will flow from B to A through the wire. Okay, this flow will continues until two conductor A and B have a same potential. अब B से A की तरफ वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कब तक फ्लो होगा? जब तक उन दोनों की लेवल इक्वल नहीं हो जाती। कब तक फ्लो होगा? जब तक ये दोनों की लेवल इक्वल नहीं हो जाती। अंडरस्टैंड? ए एंड बी हैव द सेम पोटेंशियल, दैट इज अंटिल देयर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो, ओनली देन विल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कब स्टॉप हो जाएगा? तब जब दोनों की लेवल सेम हो जाएगी। वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड to take the positive charge from point of lower potential to a point of higher potential. Okay, once again I repeat you, work has to be done against electric field to take positive charge from point of lower potential to a point of higher potential. वर्क जो होगा उसके अगेंस्ट होगा, जो भी इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज टेक फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज लेना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से? कौन लेना स्टार्ट करेगा? लो पोटेंशियल लेना स्टार्ट करेगा। कहाँ? हाइयर पोटेंशियल से। ओके, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, द डिफरेंस इज अ पोटेंशियल between positive and negative terminal of a cell is the potential difference of that cell. इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, देखो इलेक्ट्रिक वॉल वॉच में होता है, ओके, आपके टॉयज़ में आता है, तो वो वाला इलेक्ट्रिक सेल, तो उस
उसको क्या है, द डिफरेंस इन अ पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कोई भी सेल, इलेक्ट्रिक सेल निकाल के देख लो, आपको मिल जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर भी वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? The difference in a potential, the positive and negative terminal of a cell is the potential difference of that. This potential difference is caused by chemical reaction occurring inside the cell. The potential difference set the electron in motion and result in flow of electricity through a conducting wire connected the two end of the cell. उस सेल में देखो ये होता है, कार्बन का जो फॉर्म होता है ना, एक ग्राफाइड होता है, ग्राफाइट, जिंक, ऐसे मेटल्स हो, केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। तो वो कंपाउंड्स, वो केमिकल कॉम्बिनेशन फ्लो होना स्टार्ट होता है। ओके, उनके इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होता है, और उसी से जो कनेक्टेड वायर होते हैं, फिर उसमें से वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारा टॉर्च चलता है, या फिर टॉर्च लगती है, या फिर वॉच स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम पॉइंट A to point B is called electric potential difference between the 2 points. So potential difference between 2 points equal to work divided by total charge transfer. Potential difference between 2 points equal to work. Work क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी फ्लो हो रहा है वो वर्क हो रहा है। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल टू V इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q. Q मीन्स चार्ज ट्रांसफर हो रहा है जो भी। ओके, सो 1 V मीन्स वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। अब वर्क का यूनिट कौन सा है, जूल है, आपने स्टडी किया है, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। ओके, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन SI सिस्टम इज वोल्ट। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? You can read one or two time, you can easily understand this, what is potential difference. Very simple. Okay, you can 2 or 3 times, you all of you understand, then also you will not understand, you can ask me anytime. Now take today's homework. You have to define the potential difference. What is definition? You have to write it. Also you have to write potential difference of a cell. Okay, and also you have to complete the exercise of previous lesson. All of you student understand? Again 2-3 times you have to read all this concept. You not understand, you can ask me anytime. Take care. We will see the next point in next lecture. Okay.